بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم اپنا فورتھ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور تھیوریٹیکلی یہ چیپٹر ہے کنسیپٹ کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن پریکٹیکل چیزیں آپ کو یہاں پہ شاید اتنی دیکھنے کو نہ ملیں، لیکن نالج وائز یہ چیپٹر بہت اہم ہے. اور جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کا نالج اگر آپ کے پاس ہو تو آپ آئی ٹی کے اوپر جو ہے وہ کسی سے بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو چیپٹر کو دیکھتے ہیں، چیپٹر کی ہیڈنگ اور اس کے مختلف حصوں کو دیکھیں گے. میں اسکرین کو فل اسکرین موڈ میں لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. اسٹوڈنٹ ایک تو جب آپ لیکچر جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں تو اپنے ویڈیو کی ریزولوشن جو ہے وہ 360 یا 480 پہ رکھا کریں تاکہ آپ کو لیکچر جو پڑھنے میں صحیح طرح آسانی ہو. چیپٹر کی ہیڈنگ ہے جی اپلیکیشنز اینڈ یوزز آف کمپیوٹر. یہ اپلیکیشن وہ والی اپلیکیشن نہیں ہے، یہاں اپلیکیشن سے مراد ہے کہ یہ کہاں کہاں اپلائی ہو رہا ہے. کمپیوٹر زندگی کی کس کس فیلڈ کے اندر اپلائی ہو رہا ہے، اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، یہ اس اپلیکیشن کے زمرے میں یہ لفظ جو بولا گیا ہے. تو اس کا اوور ویو لیں گے. ویسے تو یہ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو ریڈ بھی کریں گے. میں کچھ سیدھا سیدھا چیزیں اس کے اندر سے ڈسکس جو کروں گا جو کہ ضروری ہیں. سب سے پہلے کہتا ہے جی کمپیوٹر ٹیکنالوجی از وائٹل فار ایوری فنکشنل ایریا آف این آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن کوئی ایک دکان بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا بینک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے. تو ہر جو فنکشنل ایریا ہے اس کا جو کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آدھی یونیورسٹی کا ایریا بند پڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو فنکشنل ایریا ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی مسٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی. اینڈ آئی ٹی سسٹم آر انٹیگرل ٹو ایوری فنکشنل ایریا. یعنی کہ اب آئی ٹی جو ہے وہ ہر شعبے کے ساتھ اس فنکشنل ایریا کے ساتھ جڑ گئی. اگر آپ یونیورسٹی کی بات کریں تو ایل ایل بی جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں لا پڑھایا جاتا ہے. اب اگر بظاہر آپ دیکھیں تو لا کا اور کمپیوٹر کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن اب اگر آپ مسٹ یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو وہ بھی سارا کمپیوٹرائز ہوا ہوگا. وہاں ان کی اسٹڈی لیب بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ آن لائن جو بکس جو پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ایسی فیلڈ کے جس کا دور دور تک کمپیوٹر سے کوئی ریلیشن نہیں ہے وہاں بھی کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ایون ایم اے اسلامیات میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ڈیجیٹل لائبریری ملے گی، کمپیوٹر پڑے ہوں گے اور اس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دنیا جہاں کی بکس جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہوں گے. تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کا فنکشنل ایریا جو ہے اس میں آئی ٹی اب ایک پارٹ کی حیثیت جو ہے وہ سے شامل ہو گیا. ان فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ، یعنی اگر آپ بینکنگ کی بات کریں اور اکاؤنٹنگ یہ زیادہ تر بینکنگ میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مینیجر اس کو استعمال کر رہے ہیں کیوں؟ فار فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ. فار ایگزامپل مینیجر یوزز سچ سسٹم. کون سا سسٹم جس میں آئی ٹی ہے وہ جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تو اس کو ایز اے لائبریری یوز کرتے ہیں، لیکن فائنینسر جو ہے وہ اس کو فارکاسٹ ریونیوز کہ ہم کتنا ریونیو اکٹھا کر سکیں گے اس سال اور ہماری بزنس ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی اس کے بارے میں ایک پوری مفصل رپورٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا اس کا استعمال. آگے وہ کہہ رہا ہے ایٹ ہوم، گھروں میں. یہ تو ہو گیا اس کا فائنینشیل استعمال. ایٹ ہوم کمپیوٹرز کین ہیلپ اس. کمپیوٹر ہماری کس طرح مدد کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. ٹو شاپ، شاپنگ کرنے کے لیے. ڈٹرمائن آور بینک بیلنسز، کہ آپ جو گھر میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا اپنے موبائل کے اوپر اپنے بینک میں موجود اکاؤنٹ کی بیلنس شیٹ جو دے سکتے ہیں، اپنے بل جو پے کر سکتے ہیں. آج آپ نے دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر لوگ گھر میں بیٹھے موبائل سے جو بجلی کے بل اور پانی کے بل جو پے کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ ورک پلیسز کمپیوٹر skills are needed for success in almost every occupational area. دیکھیں اس کی بہت بڑی مثال آج کل آپ کو کووڈ میں نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ آئی ٹی اکوپڈ ہیں، جن کو آئی ٹی استعمال کرنا آ رہا ہے، ان کے کام میں کوئی خلل نہیں پڑا. لیکن وہ لوگ جو آئی ٹی سے واقف نہیں ہیں ان کا کام جو بالکل جو سمجھ لیں ٹھپ ہو گیا، رک گیا ایک جگہ پہ، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. جبکہ جو بندہ آئی ٹی جانتا ہے وہ گھر سے بھی بیٹھ کے اپنا کام جو ہے بخوبی انجام دے رہا ہے. ایک تو استعمال ہو گیا فائنینس کے لیے، ایک اس کا وہ جنرل بتا رہا ہے کہ گھروں میں ہمیں یہ کس طرح کی ہیلپ کر رہا ہے. آگے جی فار بزنس ود ٹوڈے انکریز کمپٹیشن اینڈ گلوبل مارکیٹ اٹ از almost impossible for any organization to stay competitive without the spread use of widespread use of computer technology.
Another advantage of the computer technology on working practice is the move towards the paperless office in which all data is held in the computer files. यानी अब जो है वो कंप्यूटर हमें आस्ता आस्ता ऐसे ऑफिस की तरफ लेके जा रहा है कि जहां पे कोई अलमारी नहीं होगी, कोई पेपर नहीं होंगे, कोई पेंसिल नहीं होगी, सारे का सारा काम जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो परफॉर्म होगा। यानी वही लैपटॉप, आपका पेन भी होगा, आपकी नोटबुक भी होगी, हर चीज वही होगा, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो सेव होगी। जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल ऑफिस होता है उसमें टेबल भी पड़ा हुआ है, पेंसिल भी पड़ी हुई है, फाइलों के अंबार लगे हुए हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप यहाँ DHQ हॉस्पिटल जो चले जाएं तो एक बहुत बड़ा जो है वो कमरा उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड को सेव करने के लिए रखा हुआ है, और जिसमें अक्सर जब बारिश होती है तो काफी सारे रिकॉर्ड ज़ाया भी हो जाता है। यानी अगर आप उनसे बहुत पीछे न जाएं, अभी आप हॉस्पिटल चले जाएं और उनसे पूछें जी आज से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पे फलां डिस्ट्रिक्ट से एक मरीज आया था, उसको बीमारी क्या थी, तो पहले तो वो रिकॉर्ड उनके पास इस वक्त मुयसर नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसको ढूंढते ढूंढते महीना लग जाएगा, और हो सकता है जब वो ढूंढने के लिए जाए तो पता चले गुज़श्ता जो बारिशें हुई थी उसमें रिकॉर्ड सारा जो है वो ज़ाया हो गया। जबकि कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड सेव है वो सदियों सालों तक जो सेव रहेगा, तब तक सेव रहेगा जब तक कि आप उसको खुद ब खुद डिलीट नहीं कर सकते या कर देते। तो ये यहाँ पे इसके इस्तेमाल हैं, ये इसका ओवरव्यू है, कहता है ये सारी जो बुक के अंदर हमारा यही इस्तेमाल होगा। अगले पैराग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है आजकल के नुक्ता नजर से। Significant changes have also been taken place through the impact of interactive technology, webcam, video conferencing and so on. कहते हैं ये जो तीन चीजें उसने गिनवाई हैं, webcams, video conferencing and so on, यानी इसके अलावा भी और सी चीजें हैं। Not so long ago, if it was necessary to talk with a group of clients, the only way to do is either to arrange a meeting that all of them could attend at a reasonably central venue. कहता कुछ अरसे पीछे चला जाए तो अगर कुछ लोगों ने आपस में मीटिंग करनी होती थी, अपने क्लाइंट से मिलना होता था, तो आप क्या करते थे कि भाई कोई सेंट्रल जगह हम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम कहें जी आजाद कश्मीर के लोगों ने आपस में मीटिंग करनी है तो हमारे लिए कोशिश होती थी कि हम पिंडी में कोई ऐसा मकाम ढूंढें जहाँ पे सबको इक्वली जो है ना वो ट्रैवल करना पड़ेगा और वहां पे वो आएंगे और आके जो है वो मिलेंगे। तो हमें फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता था, वहां पे जाना पड़ता था, बैठ के मीटिंग अटेंड की, अटेंड करने के बाद आप ट्रैवल करके जो घर आ गए, ठीक है। और अगर बाकी वो मान लो आपने कन्वर्सेशन करनी है तो वो टेलीफोन के ऊपर भी जो पॉसिबल थी, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल काम परफॉर्म करना है तो आपको दोबारा इकट्ठे होना पड़ेगा। लेकिन आजकल आप देखें, अभी ये कोविड की मिसाल ले लें, आप अक्सर टीवी पे देखते हैं जी प्राइम मिनिस्टर उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और चारों वज़राए आला जो हैं और उसके अलावा कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो अपने अपने इलाके में अपने अपने दफ्तर में बैठे ही उस मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं और उनको बता रहे होते हैं। या आपने अक्सर आजकल टीवी में देखा होगा कि NCOC की जो मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि फलां जो वज़ीर आला हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शिरकत की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, इंटरनेट के जरिए आप वीडियो कैमरा और माइक वगैरह को अटैच करते हुए बिल्कुल इसी तरह बात करते हैं जैसे आप किसी दूसरे के सामने बैठ के फिजिकली जो बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये आज का इम्पैक्ट है। और इसी तरह आप देखें कि अभी तो मैं आपको ये रिकॉर्डेड जो लेक्चर भेज रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में देखें तो यूनिवर्सिटी जो है वो लाइव लेक्चर लेती है, क्योंकि वहां पे थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो मुख्तलिफ ऐप्स को यूज करते हुए लाइव लेक्चर जो लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये मुख्तलिफ चीजें ओवरव्यू में गिनवाई हैं, आप इस पूरे को देख लीजिएगा, ये सारा नॉलेज वाइज जो ठीक है। टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होना है वो यहां से स्टार्ट होना है। और टॉपिक हमारा क्या है जी, टॉपिक हमारा है यूजेस ऑफ द कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, कि कंप्यूटर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओवरव्यू में ये सारी चीजें उसने जर्नली गिनवाई भी हैं। अब वो जी चीजें वन बाय वन हम जो है वो इनको देखेंगे, ठीक है जी। आवर डेली इनकाउंटर्स विद एंड dependent upon technology is almost invisible as it takes the shape of electronic climate control system, wireless communication system such as phone and pagers, automatic tellers यानी ये जो हमारी ATM machines है to dispense money, magnetically strip cards to facilitate consumer transaction, ये जो हम बैंक्स के जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो कार्ड होते हैं जो आप ATM मशीन के अंदर भी यूज करते हैं, और अक्सर आपने देखा कि आप उसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या आजकल आप नफीस पे चले जाएं, मेगा मार्ट पे चले जाएं, तो वो कार्ड के जरिए आपकी पेमेंट जो ले लेते हैं। तो वो उसकी वो बात कर रहा है कि फैसिलिटेट कंज्यूमर ट्रांजैक्शन,
cable and satellite television, and automobiles and mass transit. Free trade agreements have 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 lead the globalization of commerce and increase the competitiveness, competitiveness, com- competitiveness is labor market. We listen to the political and scientific debate about global warming and effect of our modern use of fossil fuels. देखिए यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि आप जो आजकल हमारी ई कॉमर्स जो चल रही है, यानी नेट के ऊपर हम जो वो कोई चीजें सेल करते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने जो है वो ईबे है, या उसके अलावा अली एक्सप्रेस है, और इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हैं कि जो फिजिकली तो उनकी कोई जो अपीयरेंस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, लेकिन वो सारे का सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन जो कर रहे हैं। ठीक है जी। और उसमें उनका ये फायदा है कि उनके काफी सारे अखराजात भी जो बच जाते हैं। ठीक है जी। और मुख्तलिफ चीज़ों को वो इस्तेमाल भी नहीं करते, यानी अगर आपका फिजिकल ऑफिस होगा और वहां पे आपने अपने एम्प्लॉयज को लेके आना है और लेके जाना है, तो आप उसका जो फ्यूल वगैरह आपका यूज होगा और बेशुमारे आपके एक्सपेंस होंगे जो कि इस चक्कर में नहीं होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब वो आगे वन बाय वन जो है वो इन चीजों को गिनवाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन से यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसने जो यूज बताए हैं वो तकरीबन 8 से 9 हैं। मैं उनको जर्नली एक बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि उसमें स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से जो है वो शामिल किए गए। एक तो है बिजनेस में उसका इस्तेमाल, यानी हम जो आजकल जो बिजनेस कर रहे हैं, फिर बिजनेस के अंदर भी आगे फर्दर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका इस्तेमाल है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या है कि ऑनलाइन जो आप शॉपिंग कर रहे हैं वो भी उसी के अंदर आती है और बेशुमार चीजें। उसके अलावा तीसरा उसका इंडस्ट्री के अंदर, यानी ये जो कारें बन रही हैं आजकल या और इस तरह के बड़े बड़े जो है वो हम कारखानों के लिए जो चीजें बना रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री में इसका यूज जो है कहाँ कहाँ हो रहा है। चौथे नंबर पे कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है जी। यानी कि आप लोगों में से अक्सर ने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, ऑटो कैड। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें डिजाइन करते हैं, घर के नक्शे डिजाइन करते हैं, गाड़ियों के पुर्जे डिजाइन करते हैं, तो वहां पे भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। सिमुलेशन, ठीक है जी। उसके अलावा मेडिकल के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। देन एयरलाइन सिस्टम है। एजुकेशन तो आपके सामने है, आजकल कोविड के हालात में हम इसको यूज कर रहे हैं एजुकेशन के सिलसिले में, तो वो आपने देखना है। उसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आजकल आप देखते हैं कि गूगल जो वेदर फॉरकास्टिंग करता है तो वो 80 से 90% अक्सर जो है वो सही होती है। उसके बाद होम में इसका इस्तेमाल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं किसके, 10 मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। कंप्यूटर 10 मुख्तलिफ फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने जो फील्ड स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो पढ़नी है वो नोट कर लें कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमें जो चीजें पढ़ने के लिए बताई गई हैं वो मैं आपको नोट जो है करवाता हूँ, वो आप नोट जो है वो कर लें स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमने जो चीजें पढ़नी है, एक तो बिजनेस में इसका इस्तेमाल पढ़ना है जी, बिजनेस नंबर 1, इसमें इसका इस्तेमाल देखना है। उसके अलावा हमने ई कॉमर्स में इसका इस्तेमाल देखना है, ई कॉमर्स। उसके अलावा इंडस्ट्री में उसने ड्रॉप किया है, कैड का इस्तेमाल आपने देखना है, और उसके अलावा सिर्फ सिमुलेशन का देखना है, यानी 1 2 3 और 4 इस्तेमाल हमने देखने हैं, बाकी 6 उसने ड्रॉप कर दिए हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर से। ठीक है जी। सो ये इंशाल्लाह कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे जी, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन अ डिफरेंट फील्ड्स। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा आईटी के हवाले से था, उसमें मैंने कुछ आपको ये बताया कि जर्नली जो ओवरव्यू में आपको बताया था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक फाइनेंसर से लेके, एक बैंकर से लेके, एक टीचर, एक स्टूडेंट, और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें हमने ओवरव्यू के अंदर जो देखी। होप सो आपको मेरी आज की बातें जो समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में आया तो वो नीचे कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।